ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے تو پروگرام میں کال کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ سوال مکمل ہو جانے پر اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب آج کے پروگرام کو لے کر تمہیدی کلمہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں میں، اپنے بندوں میں وہ پسند ہیں جن کے دل پاک و صاف ہوں، جن کے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کسی سے کوئی عداوت و دشمنی نہ ہو۔ ایسے قلب کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ مال نفع پہنچائے گا، نہ اولاد نفع پہنچائے گی، البتہ قلب سلیم نفع پہنچائے گا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر پہنچے وہ قلب اس کو نفع پہنچائے گا۔ اور ظاہر ہے قلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات کی گزرگاہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے انوار کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس دل میں اگر کوئی خرابی ہوگی، برائی ہوگی اور کسی کی دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، تو ظاہر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارا حصہ نہیں بنیں گی۔ لاکھ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، تہجد میں سجدہ ریز ہو جائیں، ظاہر ہے اگر ہمارا دل پاک و صاف نہ ہو، ہمارا قلب آئینے کی طرح شفاف نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ ہماری عبادتیں ہمارے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ کسی فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ہمارا آئین، ہمارا اصول اور ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف و شفاف رکھتے ہیں۔ آئین ماست چوں ہما آئین داشتن، کفرست در طریقت ما کی نہ داشتن۔ حدیث پاک میں آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر تم صبح اس حالت میں کر سکو، شام اس حالت میں کر سکو کہ کسی کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ تو ظاہر ہے اپنے قلب کو کینے اور عداوت سے پاک و صاف رکھنا یہ ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی بڑا روح افزا سامان ہے، ہمارے لیے مسرت کا سامان ہے۔ ہم ہلکے پھلکے رہیں گے، ہمارے قلب پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا اور پھر آخرت کی کامیابی الحمدللہ ان کا نصیبہ بنے گی، مقدر بنے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے۔ اور ناظرین کالر ہم سے جڑ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ کالر کہاں سے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم بیرکپور سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی ہمارا سوال ہے کہ ہمارا ایک نام ہے عارف خان، جی تو اس کا معنی ہمیں جاننا ہے۔ ٹھیک، آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پونا سے بات کر رہا ہوں، سولاپور کا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ تو میرا ایسا کیا بولتے، میں سولاپور سے پونا آیا ایسا کمانے کے لیے، لیکن ادھر میرا کچھ جم رہا نہیں ابھی، تو ایسا کچھ مجھے بتائیں گے کیا؟ جی ترقی نہیں ہو رہی میری۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रहे हैं? कर्नाटक बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी मुफ्ती साहब से बात करना है कि जब नमाज पढ़ते हैं हमें, तो जो सूरत नमाज में पढ़ते हैं वो पहले सूरत कौन सी है वो पढ़ना है, दूसरी कौन सी आयत है वो पढ़ना करके बोलते हैं कई लोग, जी लेकिन हमें जो याद है वो पढ़ सकते हैं क्या मुफ्ती साहब से? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम गुजरात से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। ये सवाल मेरा है, मेरे बच्चे हैं बहुत मस्ती करते हैं। जी मेरे बच्चे मस्ती करते हैं तो पूरे वजीफा ऐसा बता दीजिए कम करूँ कि वो मस्ती ना करें। अच्छा अच्छा जी। शरारती बच्चों की है। उम्र कितनी है? एक मेरा लड़का 7 साल का है और एक मेरा लड़का 4 साल का है। जी तो वो एक तो बोलता नहीं तो 4 साल का है, जी तो उसके लिए कोई वजीफा बता दीजिए कि वो बोलने लगे। और एक जो दूसरा 7 साल वाला है वो बहुत मस्ती करता है, उसके लिए ठीक पढ़ने में ध्यान रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं गुड्डी बोल रही हूँ, जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से। जी सवाल पूछिए अपना। हाँ यही जो कारी साहब है इनसे बात करनी थी। जी जी आप प्रोग्राम में कॉल कर रही हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैंने ख्वाब देखा था। ये प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर का नहीं, मैं माजरत चाहूँगा। कोई शरई मसला है आपका, कोई शरई सवाल है आपका? हाँ मेरा बड़ा लड़का है। जी हाँ तो उसके बारे में पूछना है। जी पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ ये बात जी क्या पूछना चाह रही हैं आप? माजरत चाहूँगा, आपने अपने टीवी की आवाज़ भी बढ़ा रखी है। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बीसलपुर। जी यूपी बीसलपुर। जी सवाल पूछिए अपना। समझ में नहीं। मैं माजरत चाहूँगा, आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, आपने आवाज़ अपनी इतनी कम कर रखी है। जी मुफ्ती साहब हमारे पास जो सवाल जी, है जी। मैं उनसे कर लेता हूँ। पुणे से एक भाई ने सवाल किया था, जी। ये कमाने के लिए शोलापुर आए थे, इनकी कमाई में बरकत नहीं है, कुछ बच नहीं पा रहा है, जी, जी। कोई बरकत वाली दुआ हो तो बता दीजिए। आप जो कुछ कमाते हैं आप चाहते हैं कि उसमें बरकत हो। बरकत ऐसी कोई शय नहीं है जो बाज़ार से ख़रीदी जाए। ये बरकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाते हैं, और बरकत उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी रखते हैं। जो इंसान अल्लाह को राज़ी रख लें, अल्लाह ताला उनके मामलात में, उनके कारोबार में, उनकी ज़िंदगियों में, उनकी उम्र में, उनके माल में, हर चीज़ में बरकत अता फरमाते हैं। तो बरकत का ताल्लुक़ है अल्लाह को राज़ी रखने से। आप अल्लाह को राज़ी रखें। ये अल्लाह को राज़ी रखना एक बड़ा वसी मफ़हूम रखता है। इस्लाम के सारे अहकामात पर सिद्क़ दिल से अगर हम अमल करते हैं तब अल्लाह ताला हमसे राज़ी होते हैं। तो अल्लाह की रज़ा जब शामिल हाल हो जाती है तो सब कुछ अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। हदीस वाक़ में आता है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है। जब अल्लाह हमारा हो जाए तो ज़ाहिर है हमारी हर चीज़ में अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें, रहमतें, राहतें खुद ब खुद आने लगती हैं। तो पहली कोशिश कीजिए कि अल्लाह को राज़ी रखने वाले आमाल इख्तियार कीजिए। और दूसरी बात है दुआओं का अहतमाम कीजिए। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ सिखाई है, रब्बना खन्निअना बिमा रज़क़तना। ऐ अल्लाह जो कुछ आप हमको अता फ़रमाएँ उसमें क़नाअत की नेमत नसीब फरमाइए। व बारिक लना फ़ीमा आतैतना, और जो कुछ आप हमें अता फ़रमाएँ उसमें बरकत अता फ़रमाइए। तो बरकत अल्लाह से मांगी जाए। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, हर नमाज के बाद ये दुआ का अहतमाम कीजिए, रब्बना खन्निअना बिमा रज़क़तना व बारिक लना फ़ीमा आतैतना। वैसे कुरान पाक की दुआ है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बकसरत मांगा करते थे, आपके औराद में बकसरत ये दुआ शामिल रहा करती थी। हम भी उसका एहतमाम करें। इसमें दुनिया की भलाइयाँ भी मांगी गई हैं, आखिरत की भलाइयाँ भी मांगी गई हैं। इस दुआ के एहतमाम से भी इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। जी मुफ्ती साहब, बेंगलोर से बहन ने सवाल किया था कि जब ये नमाज पढ़ती है तो सूरतों की तरतीब के सिलसिले में कन्फ्यूजन में पड़ जाती हैं, किस तरह से सूरतें पढ़ जाए, तरतीब बता दीजिए। और अगर नमाज पढ़ते में तरतीब जैसे किसी की उल्टी हो जाती है, ऐसी सूरत में क्या करें? नमाज की रकातों में जो हम कुरान पाक की आयत तिलावत करते हैं उसमें अफजल है, बेहतर है कि फ़र्ज़ वाजिब लाजिम नहीं है, अफजल है, बेहतर है। और बल्कि समझिए कि ये तिलावत का अदब है कि जो सूरतें पहले वाली हैं वो पहली रकात में पढ़ी जाएं और बाद वाली सूरतें बाद की रकात में पढ़ी जाएं। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून एक सूरत है, उस सूरत के बाद इज़ा जा नसरुल्लाह है, उस सूरत के बाद तब्बत यदा है, उसके बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद है, उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़ पढ़ लें बाद वाली सूरत और फिर पहले वाली सूरत हम दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो भी जाता है भूले से तो नमाज हो जाती है, नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल ये अदब के ख़िलाफ़ है, तिलावत के आदाब के ख़िलाफ़ है। इसलिए जो सूरतें पहले हैं वो पहले पढ़ी जानी चाहिए और बाद वाली सूरतें बाद की रकात में तिलावत की जानी चाहिए। जी मुफ्ती साहब, गुजरात से बहन ने सवाल किया था कि इनके बच्चे मस्ती करते हैं, दो बेटे हैं इनके, एक बेटा 7 साल का है, दूसरा बेटा 4 साल का है। 7 साल का जो है वो पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। और छोटा वाला जो है वो बोल नहीं पाता, उसके लिए भी कोई मशवरा हो तो दे दीजिए। बच्चों की उम्र बड़ी कम है, इस उम्र में बच्चे शरारत करते हैं। ज़ाहिर है वो बच्चे जिनमें शरारत न हो, जो बच्चे उछल कूद न करें, खेल कूद न करें, तो वैसे बच्चे छोटे बच्चे नहीं कहलाते। बच्चे मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, उनका उछल कूद करना, उनकी बातचीत करना और इस तरह उनकी तबीयत के अंदर अगर ऐसी कोई बात हो तो वो कोई काबिल शिकायत बात नहीं है। अलबत्ता आप उनके लिए दुआ करें और समझाएं। छोटे बच्चों को शफ़क़त से मोहब्बत से समझाया जाना चाहिए। तन्हाई में बच्चों को मोहब्बत से समझाएं, अल्लाह रसूल के अहकाम सुनाएं, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के क़िस्से सुनाएं, सालिहीन के क़िस्से सुनाएं ताकि उनको इबरत हो, नसीहत हो, उसमें प्यार हो, शफ़क़त हो। गुस्सा और ज़्यादती हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इस काम के साथ साथ दूसरा काम में दुआ करें। अल्लाह ताला ने दुआएं भी सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ आपको मिलेगी 19वां पारा तीसरे रुकू में, जहाँ सूरा ख़त्म हो रहा, सूरह फुरक़ान आखिरी आयत से पहले वाली आयत है। बहुत प्यारी दुआ है। ऐ हमारे रब, हमको हमारी बीवियों से, और बीवियाँ दुआ कर रही हूँ तो हमारे शौहरों से और हमारी औलाद से मौला हमें आँखों की ठंडक नसीब फरमाइए। ये दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे हमारे लिए आँखों की ठंडक ज़रूर बनेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और करोड़ को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मेरा नाम नहीं बता सकती, मैं बाबा नगर से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हर बात में हदीस का हवाला देते हैं, लेकिन जब अपने माँ बाप के हुकूक की बात आती तो उसमें कोताही बरतते। तो क्या शरीयत में इसका क्या हुक्म है उनके ये? जी। और दूसरा सवाल ये है कि सूरतुल बकरा डेली पढ़ने से क्या मुवक्किलीन हाजिर हो जाते? क्योंकि हमको आदत हो गई है पढ़ने की, ना पढ़े तो बेचैनी नहीं। सूरतुल बकरा पढ़ने से समझ गया। जी जी ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं नासिक से बोल रहा हूँ, लईक हाजी बोल रहा हूँ मैं। जी लईक साहब, सवाल पूछिए। हाँ जी, आपको सलाम है और मौलाना साहब को भी मैं सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सवाल ये है कि जो मोबाइल में जो हम लोग सिम कार्ड में कुरान की आयत वगैरह जो रहती है, उसको टेप करते हैं, तो वो पढ़ के सुन के हम उसको याद कर सकते क्या? ठीक। और जी और हर एक सवाल ये है जी, क्या मुझे तकरीबन तारत हो गई होती है तो खड़े रह के मेरे को प्रॉब्लम है, तो खड़े रह के तारत में कर सकता क्या?
जरा प्लीज जरा, और थोड़ा मैं घुटने में प्रॉब्लम है, मैं बैठ नहीं सकता जरा, तो इसके लिए कुछ वजीफा बताओ या कुछ दुआ करो मेरे लिए। ठीक, हाँ? बहुत प्रॉब्लम घुटने में। हाँ ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद इलियास बीसलपुर। जी मोहम्मद इलियास बीसलपुर। जी, सवाल पूछिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिम व अतूबु इलैहि, इसमें और अस्तगफिरुल्लाह ये दोनों एक ही चीज़ है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, मसरूर अहमद, यूपी मेरठ से। जी मसरूर साहब, सवाल पूछिए। जी मैं मौलाना से एक सवाल करना चाहता हूँ। एक तो ये शरय फातिमी मेहर के बारे में जरा सी तफसील बताएं। जी, और दूसरा, जो नजर होती है उसकी वो नजर उतारते हैं लेकिन उतरती नहीं, उसके लिए कोई दुआ बताइए आप। ये पहला सवाल आपने क्या पूछा था? शरय फातिमी मेहर। जी ठीक है तफसील जरा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम शरीयत के आईने में। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना, बदहजमी, एसिडिटी। Viewers, India's largest news network, News 18 Network. नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम शरीयत के आईने में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अकरमकल्लाह। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मोहतरमा ने सवाल पूछा था, और उन्होंने कहा कि हर बात पर कुछ लोग जो है हर बात पर अहादीस का हवाला देते हैं, लेकिन जब वालिदैन की बात आती है, उनके खुद वालिदैन की, तो वो जो है उस पर कुछ सफाई नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या शरई हुक्म है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऐसे अफराद के लिए वईद बयान फरमाई है जो कहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। इरशाद बारी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, तुम वो बात कहते क्यों हैं जो करते नहीं हो। तो ज़ाहिर है उनको चाहिए कि जो कुछ वो अहादीस पाक बयान करते हैं उसके बाद उसके मुताबिक अमल भी करें। जब तक अपने आप को अमल का पाबंद नहीं बनाएंगे, उनकी बात का असर भी नहीं होगा, और उनके किरदार का अच्छा असर भी सामने वाले पर कायम नहीं हो सकेगा। अगर कोई कहता भी हो, अहादीस पाक सुनाता भी हो, अमल करता हो, तो ज़ाहिर है उसका ये अमल लोगों के दिलों पर मुर्तसिम होगा, और लोग मुतासिर होंगे, और लोगों के दिलों पर उसकी बात असर करेगी। और अगर वो अहादीस पाक तो सुनाते हैं, लेकिन जब वालिदैन का मामला आता है, तो जैसे अहादीस पाक में उनकी फजीलत आई है, उनके साथ हुस्न सलूक करने की, उनकी ताज़ीम की, एहतराम की, उनकी खिदमत व अज़मत की, ज़ाहिर है अगर वो कर नहीं पाते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए सख्त वईद है, सख्त वईद है। चाहिए कि जो बात हम कहते हैं उस पर अमल भी करें। दूसरा सवाल उनका, जी सूरह बकरा से मुताल्लिक़ पूछा। सूरह बकरा आप दरियाफ्त फरमाना चाहती हैं कि आप पाबंदी से सूरह बकरा की तिलावत करती हैं, और आप जब तक तिलावत नहीं करती आपको इत्मीनान नहीं होता, तो ज़रूर आप सूरतुल बकरा की रोज़ाना तिलावत कीजिए, इससे कुछ भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। अब आप ये पूछना चाहती हैं कि क्या रोज़ाना सूरतुल बकरा की तिलावत करने से मौकिल हाजिर होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसका ख़ास तरीक़ा होता है, उस तरीक़े से पढ़ने वाले
وہ کسی موکل کو اپنے تابع کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ہم تلاوت کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کی غرض سے روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، یا گھر سے آفتوں بلاؤں کے دور ہونے کے لیے اور حفاظت کے لیے اگر ہم تلاوت کرتے ہیں ضرور کر سکتی ہیں آپ، روزانہ تلاوت کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناسک سے لئیق صاحب نے 2 سوال کیے تھے۔ ایک تو یہ سوال تھا کہ موبائل میں جو قرآنی آیات ہوتی ہیں وہ سن کر یاد کر سکتے ہیں؟ جب قرآن پاک میں آپ کے موبائل میں قرآن پاک محفوظ ہو اور جب آپ اسے کھول دیں اور آپ کے اسکرین پر اس کے حروف نمودار ہو جائیں تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ موبائل فون جب ہاتھ میں لیں تو آپ وضو سے رہیں، اور خاص طور پر جب اسکرین پر حروف آ رہے ہوں اور حروف کو آپ انگلی لگا کر تلاوت کرنا چاہتے ہوں چھو کر، تب بھی آپ کو وضو کرنا لازم ہے، بغیر وضو وہ اسکرین کو نہیں چھونا چاہیے۔ اب جیسے ہم عام مصحف میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، شرائط کے ساتھ کہ باوضو ہو کر آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح اگر موبائل میں قرآن کھل گیا ہو، اسکرین پر نمودار ہو گیا ہو، تو پھر آپ اہتمام کریں، باوضو رہیں، آپ اس سے بھی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، یاد کرنا چاہیں تو موبائل میں جب قرآن پاک کھل گیا ہو تو اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، جیسے اگر بہت سے لوگ جیسے قرآن پاک کی آیت جو ہے بھیج دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اگر جیسے موبائل دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی آیت آ گئی ہے تو دل میں تو پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی پھر وضو کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں، اگر اسکرین پر کھلا ہوا ہو، کسی نے ہم کو فارورڈ کیا ہے، ہمارے فون میں اسکرین پر وہ قرآن پاک کی آیت آ گئی ہے اور ہم اس کو انگلی لگا کر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وضو سے رہنا شرط ہے۔ جی، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے کور کو آپ نیچے ہاتھ لگا رہے ہیں، جی جی، آپ زبان سے بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں اسکرین کو، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جی، مطلب اگر ہم اسکرین کو ٹچ کر رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس وقت وضو ہونا ضروری ہے؟ وضو کا ہونا ضروری ہے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ یہ مطلب ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو یہ بیٹھ نہیں سکتے تو کیا کھڑے ہو کر طہارت کر سکتے ہیں؟ ٹھہر کر بھی طہارت کی جا سکتی ہے مجبوری کی وجہ سے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث پاک میں ایسا عمل ثابت ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو ایسا تقاضا ہو گیا تھا اور وہ جگہ جہاں پر آپ اپنے ضرورت سے فارغ ہونا چاہتے تھے وہ ایسی نہیں تھی کہ وہاں بیٹھا جائے، بیٹھنا وہاں مناسب نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیے ہوئے ہی فراغت حاصل کی ہے۔ لیکن ایسا عمل ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے، گاہے اگر ایسی ضرورت درپیش ہو، کوئی خاص مجبوری ہو تو ایسا عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، بیٹھنا مشکل ہے، تو آپ ٹھہرے بھی آپ چاہیں تو پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ پیشاب کے چھینٹے آپ پر، آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑوں پر اڑنے نہ پائیں۔ ایسا آپ طریقہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے اس چیز سے حفاظت ہو جائے، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور آپ چونکہ مجبوری ہے آپ کے لیے، مجبوری میں بہت سی چیزوں کی گنجائش ہے، تو آپ اس بات کا لحاظ رکھیں، کچھ چھوٹے آپ کو اڑ گئے ہوں تو آپ اسے پانی سے ترشو کر دیں، بھیگا دیں، اس کو ڈھیلا کر دیں، پیر پر پڑ گئے تو پیر کو دھو دیں، اور کوشش کریں اس بات کی کہ وہ چھینٹے اور خطرے آپ کے لباس پر یا آپ کے جسد پر نہ آنے پائیں۔ جی مفتی صاحب، اگلے کالر ہمارے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ استغفار کے بارے میں تشریح بیان فرمائیں۔ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں، اور حدیث پاک میں یہ بھی کلمات آئیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو جو کلمات بھی آپ کو یاد ہوں اس کے ذریعے سے استغفار کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ سے مغفرت مانگی جا سکتی ہے۔ استغفر اللہ کے معنی ہے، اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مغفرت چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اور کچھ کلمات اضافہ بھی ہیں تو آپ کو یاد ہوں تو اچھا ہے، اور پھر سید الاستغفار میں زیادہ کلمات ہیں اور پیارے کلمات ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں، اور ان کلمات کا نام ہے سید الاستغفار، یعنی اللہ سے مغفرت مانگنے کے جو کلمات ہیں ان میں ان کو
बड़ी अहमियत और फजीलत हासिल है। यह भी हमको याद होना चाहिए, और याद न हो अस्तगफिरुल्लाह के ज़रिए से भी हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, मेरठ से मसरूर साहब ने सवाल किए थे, इनके दो सवाल हैं कि पहला सवाल है कि नज़र उतारने का तरीक़ा क्या है? नज़र हक़ है। हदीस पाक में आता है कि बसा औक़ात नज़र इंसान को मौत तक पहुंचा देती है, ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। मतलब ये कि इंसान की या जानवर की हलाकत का सबब बन जाती है। तो नज़र अल-ऐन हक़्क़ुन, हदीस पाक में है कि नज़र का लगना हक़ है। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन पर ये कलिमात पढ़ कर दम किया करते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन शर्रि कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। ये कलिमात हमको याद होना चाहिए। इस पर आप पढ़कर दम करेंगे तो इंशाअल्लाह नज़र जो है, नज़र का असर दूर होगा। और सूरह नून वल कलम 29वें पारे में दूसरा सूरा है, और दूसरे सूरे में दो रुकू हैं, और दूसरे रुकू की आखिरी दो आयतें हैं, वहीं यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। यह भी पढ़कर दम कर दे तो इंशाअल्लाह नज़र के असरात दफ़ा होंगे। और सूरतुल फलक और सूरतुन नास भी तीर बहदफ है, इनको भी पढ़कर बच्चों पर या बड़ों पर दम किया जा सकता है। इससे भी नज़र बद के असरात अल्हम्दुलिल्लाह दूर होते हैं। जी मुफ्ती साहब, उनका दूसरा सवाल था कि महर फ़ातिमी कितना था, मतलब बीबी फ़ातिमा का महर कितना था? महर फ़ातिमी कहते हैं उस महर को जो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए बांधा गया था। बाज़ रिवायात में आता है कि वह 420 दिरहम था, और बाज़ में आता है कि 480 दिरहम था। बाज़ों ने 5 दिरहम की भी रिवायत बयान की है। लेकिन मौजूदा दौर के मुतहक़्क़िक़ उलमा ने जो बात बयान की है उसको 500 आप दिरहमी तसव्वुर करें तो उसका जो मौजूदा बटावन है, मौजूदा दौर का जो हिसाब है, वो 1 किलो 600 ग्राम चांदी के आसपास बनता है। आप अगर इस वक्त महर फ़ातिमी बनेंगे और आप कहेंगे कि मैं भी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो महर था वो बांधता हूँ, तो आपको 1 किलो 600 ग्राम चांदी के आसपास या उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? आसिफ नगर झिर्रे से मोहम्मद अनवर बात करो। मोहम्मद अनवर जी, मोहम्मद अनवर साहब सवाल कीजिए। जो मकान जो है रहन पे लिए तो है, उसके लिए जो है तो कुछ फतवा है। अब किराया वगैरह बनने का नहीं रहता ना, उसको वो बारे में जानना था थोड़ा। क्या जानना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब? समझ गए? जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सवाल आपका समझ गए मोहम्मद अनवर साहब। जी मुफ्ती साहब मुख्तसर जवाब दे दीजिए। जी, रहन का जो मामला होता है, दरअसल किसी को पैसों की ज़रूरत होती है, वो चाहते हैं कि आप उनको क़र्ज़ हसना दें। जब आप उनको क़र्ज़ दे दें 50 लाख 25,000 50,000 जो उनको मतलूब है और आप देना चाहते हो वो क़र्ज़ आप दे देंगे, तो उस क़र्ज़ की वसूली कैसे हो, उसके इत्मीनान के लिए तयक़ुन के लिए कोई चीज़ रहन रखाई जाती है, ताकि जब वो क़र्ज़ अदा कर दे तो वो शय उनको बहिफ़ाज़त तमाम वापस कर दी जाए। तो फ़ुक़हा ने लिखा है अहादीस पाक की रोशनी में कि जो चीज़ हमारे पास रहन रखवाई गई है उससे हमारा इंतफ़ा यानी फ़ायदा उठाना शरन जायज़ नहीं है। तो मकान भी ऐसे ही समझ लीजिए, आपने किसी को पैसे फराहम कर दिए हैं, उन्होंने मकान आपके यहाँ रहन रख दिया है, तो ये जो मकान रहन रखाया गया है इस इत्मीनान के लिए कि कल आप पैसे उनके वापस अदा कर दें। तो अगर कोई वापस अदा न कर सके तो उस मकान को फ़रोख्त करके अपने क़र्ज़ की वसूली का सामान करें। मकसद ये है कि आप अगर रहन का मकान ले चुके हैं तो उससे इंतफ़ा यानी फ़ायदा उठाना शरन जायज़ नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम शरीयत के आईने में। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। या